Friends, today we will discuss about Sackmore theory. In your examination, question will be asked in this manner. Write a detailed note on Sackmore theory and give conformation of cyclohexanes. और write a detailed note on Sackmore theory. So उस कंडीशन में उस क्वेश्चन में आपको सेम आंसर लिखना है. जब कभी भी कोई थियरी की लिमिटेशन होती है तो उसके कारण क्या होता है, दूसरी थियरी एग्जिस्ट होती है. We have discussed Bayer's theory. Okay, limitation थी कि that theory was applicable only for first few cycloalkane. Okay, तो उसके कारण अभी उसके सॉल्यूशन के लिए ये जो थियरी है ये सैकमोर थियरी रहेगी. Sir Adolf von Bayer's theory was applicable only to first few cycloalkane and not applicable to cyclohexane and onwards. तो ये हायर साइक्लोअल्केन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं थी. His assumption was that all the cycloalkanes are planar. सभी cycloalkane planar है and forced into one plane. सभी एक plane में present है. But ये assumption है, ये गलत है. This is wrong. Sir Hermann Sack and Sir Ernst Moore has proposed one theory to explain the stability of cyclohexane and higher cycloalkane. तो Sack and Moore, these were two scientists. उन्होंने cyclohexane and higher cycloalkane की stability के लिए एक theory उन्होंने दी है. This theory is known as Sack and Moore's theory. Sack and Morse has proposed that the strain that is present in the cyclohexane and higher cycloalkane can be relieved if the ring carbons are not present in one plane. रिंग के अंदर जो कार्बन है, इफ दे आर नॉट फोर्स्ड इन वन प्लेन, अगर वो एक प्लेन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि जो रिंग के अंदर जो साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोअल्केन, वो रिंग के अंदर जो स्ट्रेन है वो रिलीव हो जाएगी. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो रिंग के कार्बन है वो एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, तब जाके ये स्ट्रेन जो है वो रिलीव हो जाएगा. इफ द रिंग्स आर पकर्ड और फोल्डेड और फ्लेक्स्ड, अगर ये रिंग जो है वो फोल्डेड कंडीशन में होगी तो क्या होगा, द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 इंचेस विल बी मेंटेन. तो अगर ये रिंग है वो फ्लेक्स्ड कंडीशन में होगी तो ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 28 इंचेस वो मेंटेन रहेगा. We have calculated angle strain in last theory that it is the 1 by 2 normal tetrahedral angle minus bond angle that present in the ring. सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि अगर ये फोल्डेड कंडीशन में है कोई भी रिंग तो उसके अंदर जो एंगल रहेगा वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होगा. तो ये जो एंगल बनेगा वो भी सेम 109 डिग्री 28 इंचेस रहेगा. तो इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0. So angle strain will be 0 and rings will be strain free or strainless. Here there are two folded and flexed conformation for cyclohexane. अगर हम cyclohexane की बात करें तो उसके लिए जो folded और पकड़ conformation है वो दो टाइप के होते हैं. ओके, इट कैन एग्जिस्ट एज चेयर फॉर्म. यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक फोल्डेड conformation है. तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सेम लाइक चेयर, सो इट इज नॉन एज चेयर फॉर्म. एंड अनदर वन इट इज लाइक बोट, so it is known as boat form. By these two conformation, the cyclohexane ring can become free from strain. अगर ये folded condition में रहेंगे तो क्या होगा, cyclohexane जो ring है उसके अंदर जो strain है वो strain remove हो जाएगी. Among both this conformation, अगर ये दो conformation को हम compare करें तो chair conformation is more stable as compared with boat conformation. ये chair conformation ज़्यादा stable है. So in general, all the cyclohexane molecules exist as chair conformation rather than boat. सभी जो cyclohexane है वो chair conformation में रहना पसंद करेंगे because it is more stable. Cyclohexane contains 6 carbon that is joined with each other. यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4 5 and 6 carbon that is joined with each other. Each carbon is connected with 2 hydrogen. हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है. So total 12 hydrogens are present in cyclohexane. Among these 12 hydrogen, 6 hydrogens are present straight up or down, that is perpendicular to plane. तो यहाँ पर हम देखें रेड कलर जो हाइड्रोजन है, ओके, सो दीज आर दी स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन. ये अप है, ये डाउन है, दिस वन इज डाउन, दिस वन इज डाउन, दिस वन इज अप. So 6 hydrogen present straight up or straight down, that is perpendicular to plane. These hydrogens are known as axial hydrogen. जो red color hydrogen जो दिखाए है वो है axial hydrogen and that can be denoted by HA, H capital and A subscript.
and in small letter. Remaining 6 hydrogen जो ब्लैक कलर पेन से बताए हैं, remaining 6 hydrogens are slight above or below the plane. So these are slight below, above, slight below, slight above, slight above, slight below. These are slight above or below the plane. These are known as equatorial hydrogens. This can be denoted by HE, H capital, E in small letter and subscript. Okay, so each carbon is connected with 6 axial hydrogen and 6 equatorial hydrogen in both chair as well as boat conformation. अगर हम बोट कन्फर्मेशन की बात करें, इन बोट कन्फर्मेशन यहाँ पर क्या है, इन बोट कन्फर्मेशन ये जो हाइड्रोजन है दैट इज द टर्मिनल कार्बन हाइड्रोजन, टर्मिनल कार्बन है, इनके साथ जो कनेक्टेड है वो टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। ड्यू टू लेस डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन विल अकर। एंड एज कंपेयर विथ चेयर, चेयर में क्या है, दिस टू आर दी टर्मिनल कार्बन एंड दिस टू आर टर्मिनल हाइड्रोजन। तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो रिपल्सन यहाँ पर बहुत ही कम होगा। इन बोट कन्फॉर्मेशन टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक है, तो इसके कारण क्या होगा, दिस विल कॉज रिपल्सन, दिस विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जहाँ पर रिपल्सन होता है मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, और जब भी एनर्जी बढ़ती है स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। दिस विल डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, सो बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल। एज एंड इफ वी टॉक अबाउट चेयर कन्फॉर्मेशन, द टर्मिनल हाइड्रोजन्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, तो टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से दूर है। सो रिपल्सन विल नॉट अकर एंड दिस विल डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा तो इसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब भी एनर्जी डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। इन द चेयर कन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। ओके, सो चेयर कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल देन बोट कन्फॉर्मेशन। सो इन जनरल जो कन्फॉर्मेशन स्टेबल रहेगा साइक्लोहेक्सेन, वो कन्फॉर्मेशन में ज़्यादा एग्जिस्ट रहेगा। सो ऑल दी साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज चेयर कन्फॉर्मेशन रादर देन बोट। Further, this cyclohexane has two intermediate conformation, half chair and twist boat. This half chair and twist boat are the intermediate conformation. ये exist नहीं रहते, existence तो एक chair और दूसरा boat यही existence होता है, पर ये intermediate conformation है। This one is half chair and this one is twist boat. ओके, तो चेयर में से बोट में कन्वर्ट होता है, तो इसमें एक हाफ चेयर बनता है, फिर ट्विस्ट बोट बनता है, फिर बोट बनता है। और बोट में से जब भी चेयर बनता है तब ट्विस्ट बोट बनता है, फिर हाफ चेयर बनता है, फिर चेयर बनता है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशंस। So here potential energy, it is written on the y-axis, and on the x-axis relative energy difference of cyclohexane conformation. Here various conformation has been written, chair, then half chair, then twist boat, then boat, then after boat this twist boat, half chair and chair. Okay, so this is the conversion of the one conformation into another. Here we can see the energy difference between chair and boat conformation is 7.1 kilocalorie per mole. यहाँ पर हम देखें तो चेयर कन्फॉर्मेशन और बोट कन्फॉर्मेशन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 7.1 किलो कैलोरी पर मोल है। तो मतलब क्या है कि चेयर कन्फॉर्मेशन बोट कन्फॉर्मेशन से ज़्यादा स्टेबल है। कितना ज़्यादा स्टेबल है, 7.1 किलो कैलोरी पर मोल, इतना ज़्यादा स्टेबल है। So chair conformation is stabilized from the boat conformation by 7.1 kilocalorie per mole. अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर दूसरे कन्फॉर्मेशन की बात करें हाफ चेयर, तो ये चेयर कन्फॉर्मेशन उसकी एनर्जी हाफ चेयर से कम है। कितनी कम है, 11 किलो कैलोरी पर मोल। सो दिस चेयर कन्फॉर्मेशन इट इज स्टेबिलाइज्ड फ्रॉम दिस हाफ चेयर बाय 11 किलो कैलोरी पर मोल। ये 11 किलो कैलोरी पर मोल इतना ज़्यादा स्टेबल है। फर्दर ट्विस्ट बोट, चेयर कन्फॉर्मेशन की एनर्जी ट्विस्ट बोट से कम है। कितनी कम है, 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, उतनी कम है। तो क्या रहेगा, चेयर कन्फॉर्मेशन इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्विस्ट बोट, पर कितना ज़्यादा स्टेबल है, बाय 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, सो चेयर कन्फॉर्मेशन इज स्टेबिलाइज्ड फ्रॉम हाफ चेयर by 11 kilocalorie per mole and it is stabilized from the twist boat by 5.5 kilocalorie per mole. Okay, so dear friends, whenever question asked in your examination you will mention all the things. Okay, prepare well. We will meet again in the next lecture. Thank you for watching this video.